Continuation of the lesson, page number 38, paragraph 8. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. Run across means milna. And when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. जब वो ब्रेकफास्ट के लिए सुबह आया तो उसने ये सोचा कि उसका पुराना कॉमरेड साथी अभी ब्रेकफास्ट के लिए इधर उपस्थित होगा. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. उसने कहा, सबसे पहले we must see to it that he gets a little flesh on his bone. सबसे पहले हम इस आदमी को कुछ खिला पिलाएं ताकि बस उसका हड्डी में मांस भर जाए. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. दूसरी बात ये है कि बस इस तरह से रैट ट्रैप बेचते बेचते जीने का तरीका चेंज करके कुछ और नौकरी ढूंढ के देना पड़ेगा. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. उनके साथ ये जो मतलब परिस्थिति है वो वैसे नहीं होना चाहिए, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कल उसको देखा तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि एक ज़माने में ये पढ़ा लिखा निकल गया था. You must have patience, my little girl, said the father. पिताजी ने बोला, संयम रखना चाहिए तुम्हें. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जब ये नहा धो के तैयार होके आ जाएगा ना, फिर बता देना ये अनपढ़ गवार है. देख लेना वो तैयार होके आते समय कितना स्मार्ट लगेगा. Last night he was naturally embarrassed. कल रात को वो शर्मिंदा था देखे. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. जैसे वो कपड़ा बदलेगा और कपड़े के साथ साथ उसका असली रूप बाहर आ जाएगा. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. इतना में वो आ ही गया. Yes, now he was truly clean and well dressed. अब बिल्कुल तैयार होके आए, कपड़े भी अच्छा पहना. The valet had bathed him. valet ने उसको नहलाया. इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको नहलाया, उसको नहाने में मदद किया. Cut his hair, उसका बाल काटने में मदद किया. And shaved him, दाढ़ी बनाने में मदद किया. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the ironmaster. ironmaster के एक अच्छा जोड़ी कपड़ा दिया, वो पहन के आया वो. And he wore a white shirt and a starched collar and holed shoes. बिल्कुल white shirt, बिल्कुल प्रेस किया हुआ, and holed shoes, शूज भी पहन रखा है. But although his guest was now so well groomed, the ironmaster did not seem pleased. अच्छा कपड़े पहन के तैयार होके आ गया, फिर भी आयरन मास्टर उसको देख के खुश नहीं हुआ. ब्रेकफास्ट के टाइम He looked at him with a puckered brow.
puckered means wrinkled. झुर्रियाँ चढ़ा के देखा. And it was easy to understand that when he had seen the stranger fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. वो इसलिए संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि उस फोर्ज में रिफ्लेक्शन लाइट के वजह से वो अपने पुराने साथी को सही से पहचान नहीं पाया था. अब तैयार होकर सामने आ गया, दूसरा कोई है. अब क्या कर, बुला तो गए, आना भाई खाने के लिए. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब दिन की रोशनी में आदमी सामने है बिल्कुल तैयार होके, तो कोई गलती नहीं है कि उसने जो सोचा वो ओलोफ नहीं था. What does this mean? That he thundered, roared, चिल्लाया. क्या है ये? The stranger made no attempt to dissimulate. Stranger क्या करे? उसने जो प्रतीक्षा किया वो नहीं हो रहे. He saw at once that the splendor had come to an end. अब उन्हें पता पड़ गया धोखा सामने आया. अब क्या करो? It is not my fault, sir, he said. सर मेरी गलती थोड़ी है. I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने आपसे थोड़ी बोला था मैं तो वही हूँ, मैं तो वैसे एक प्लॉडर हूँ. And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. आपको मैंने कितने बार बोला था मुझे यहाँ सोने दीजिए, आप काम आना. और पीछे से बेटी को भी भेजा ना, लिया लेके आओ उसको, मना के ला. मैंने थोड़ी बोला था. But no harm has been done at worst. I can put on my rags again and go away. सर मेरा आना आपको असंतुष्ट लग रहे तो आप टेंशन मत लो, आपके कपड़े में ले उतार के दे दूँ और मैं वापस चल जाऊँ. Well, said the ironmaster, hesitating little. It was not quite honest either. इसमें कोई ईमानदारी भी नहीं है ना. अब इसमें क्या ईमानदारी लाना, उसने साफ मना किया था मैं नहीं आ रहे, अब गलती उसके ऊपर डाल रहे. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शरीफ आ जाए तो तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, मैं तो शरीफ को बता दूंगा ही सही. शरीफ उधर पुलिस ऑफिसर को शरीफ कहते हैं. उसका मतलब ये पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले है. द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट. उसको गुस्सा आगे जाके टेबल पर जोर से घुसा मारा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, देख अब मैं बोलने जा रहा हूँ. हाउ थिंग्स आर इज दैट, कैसी बातें मैं बता दूं अभी तुम्हें. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप. इस पूरा संसार एक पिंजरा है. एंड ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड. लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर. अब जो भी दिखाई दे रहे हो ना, आप सब के मतलब चारे हैं जो फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है. तुम्हें ज़्यादा शौक चढ़ गया ना, बुलाओ पुलिस को, हैंड ओवर कर दो मुझे. देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे में कम इन यू योरसेल्फ इफ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप. लेकिन याद रखना किसी दिन तुम भी ऐसे एक चारा बन के बस फंस जाओगे पिंजरे में. हाँ ये याद रखना. द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ. आयरन मास्टर सुनकर हंसने लगा. दैट वॉज नॉट सो बैडली, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड बाई माई गुड फेलो. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve.
But now get out of here as fast as you can. अब पुलिस आए तो कम से कम हमारे साथ मतलब क्रिसमस में एंजॉय करने के लिए वो तो काफ़ी है, आप अभी जा सकते हो. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक यू ought टू स्टे विथ अस टुडे. जैसे वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलने वाले थे तो बोला, नहीं, उसको यहाँ रहना है. आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती वो चले जाओ. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर. ये कहकर वो जाके दरवाज़ा बंद कर ली. व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. क्या कर रही है? द डॉटर stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought now homesick, homelike and Christmassy. She was going to make things for the poor hungry wretch. बेटी वहीं से अढ़ाई नहीं. उनको अच्छा लगा कि बस चलो ये रुक गया, अब क्रिसमस आराम से मनाएं. उनको जो भी चाहिए तो मैं तैयार करके दे दूंगी. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड. उसको कुछ समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा है, पापा क्या बोल रहे, क्या है शरीफ, क्या है कुछ है. इसलिए उसने क्या किया, उसको रोक लिया. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंज हियर, सेड द यंग गर्ल. And he walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcomed and can feel at home. पापा ये पूरा साल ऐसे घूमते रहते हैं, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया, ये ऐसे घूमते रहेंगे. Whenever he turns he is chased away. जब कभी वो कहीं निकलते हैं तो उसको भगा दिया जाता. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. उनका मन में यही बात है कि बस वो अरेस्ट किया जाएगा किसी क्षण. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. हमारे साथ एक दिन रहने दो ना शांति से. Just one in the whole year, पूरा साल में एक बार रहने दो ना. रहने दो, खाना खाने दो. फिनिश्ड.